السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج شریک گفتگو ہیں ایک کلاسیکل استاد، راک سٹار اور ایک پروموٹر. واو، گاتا ہوں میں پورا سال بلیے ناشتہ زمانہ میرے نال بلیے. بلی جیسی میرے بیٹا، اس طرح کی اگر مرض لاحق ہو جائے تو بیٹھ کے چیخو پکار نہیں کرتے، کسی معالج کے ساتھ رجوع کرتے. سر پہ نہیں اقبال بلیے. یہ اگر ذاتیات پہ ہی بات ہونی ہے تو پھر اجازت دیجیے. استاد محترم، آج آپ نے ناراض نہیں ہونا پلیز. مگر اس طرح کی اگر شوقی ہوگی تو پھر ناراض نہیں ہوگی تو اور کیا میرا مطلب ہے کہ کیا بات ہوگی پھر. نہیں، میں آپ نہیں کرنا دوں گا. بیٹھے آپ پلیز. حد ہو گئی ہے. بیٹھے آپ خان صاحب. اچھا، آج میں نے اپنے پروگرام میں خاص طور پہ یہ پروموٹر صاحب کو دعوت دی ہے. یہ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ کس کی زیادہ ہے. کیوں جی؟ جی میں نے ان دونوں فنکاروں کو بک کیا جی سال اچھا، پورے سال کے لیے ماشاءاللہ، مبارک ہو. ہمیں ریکویسٹ کی تھی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں آرٹ کے محبت کرنے والے لگے تو انہوں نے ہمیں 50,000 روپیہ ایڈوانس بھی دیا ہے. لیکن 50,000 تھوڑے نہیں. کیا کہنے جناب، 6 مہینے تک گانا ہے انہوں نے. کیوں 6 مہینے سردیاں نے تک گاندے ہی نہیں ہے. انہوں نے بلان جاؤ تو اندروں ہی خان صاحب کہہ دیں، خان صاحب گھر نہیں گئے. پھر بھی 50,000 بہت تھوڑے ہیں. دیکھیے، تو 50,000 گن کے بکھا دینا مینوں، میں اور دے دینا. 50,000 گنو تو صحیح. تو اب آپ کی بھابھی نے گنے ہیں، وہ پورے تھے. مگر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، بات تو یہی اعلیٰ ہے کہ 1 سال کے لیے تو 50 دیکھ لیجئے. تو سردیوں میں تو ویسے ہی فنکشن ارینج کرنا بھی کوڑ پنا ہے. کیا کر رہے ہیں سرکار آپ؟ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اس طرح کے استاد صاحبان کو باقاعدہ جو بادشاہ اور نواب ہوا کرتے تھے وہ جاگیریں عطا کر دیا کرتے تھے. کیا کہنے آپ تو پیڑا گانتے ہو تو بھی تلا ہوتے سن. یہ تو شوقی ہے، یہ صرف شوقی ہے بیٹا. اس وقت تو ایسا گویا اور ایسا سنویا، سننے والے زیادہ. آپ یقین کیجئے، ہمارے دادا کو بہاول پور کے نواب بہاول نے بلایا گانے کے لیے. تو دادا بتاتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو نواب صاحب نے پورا ہرن پکا لیا. تو جب ہرن پورا پکا لیا تو ہمارے دادا جب پہنچے تو نواب صاحب نے ہمارے دادا کے سامنے بیٹھ کے پورا ہرن کھایا. ہاں، یہ بھی اعزاز کی بات ہے. تم تو شوقی کر رہے ہو، یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ کسی گویے کے سامنے ہرن کھایا جائے. اور دادا جی نا تو بیٹھ کے دور کمنٹری کر رہے سن کہ لو جی پٹھ بھی گئی جی اور چاپاں بھی کھا گئے جی. او بھائی ایسے بولتے جا رہے. لو جی دستی بھی گئی. اور نہیں یار، اور ڈنکا بولتا تھا ان کے دادا کا جی. ان کو کیا پتا. یا اللہ کلیجی چھڑ دینا. اور بھائی اوجری بھی گئی جی. ایک بات ذہن میں رکھو، نواب صاحب ہمارے دادا کے بغیر کھانا نہیں تھے کھاتے. اور وہ وقت میں تھا نا آپ کے دادا کا توتی بولتا تھا. اور کیا کہنے. اچھا جی، توتی بولتا تھا، طوطا نہیں بولتا تھا. شوقی نہ کرو. نہیں کرتے. ہمارے دادا کے بغیر نواب صاحب کبھی کھانا نہیں تھے کھاتے. ہاں، نواب صاحب کیونکہ ان کے دادا روٹیاں لے کے آتے تھے. یہ بھی آپ شوقی کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے اس وقت نواب صاحب کے وقتوں میں دادا جی کا توتی بولتا تھا. ہاں جی، دادا جی توتی بولتی سی جی. آپ تو دادا جی گونگے سن. اگر ہمارے دیکھیں ہمارے بزرگوں کے متعلق
اگر ایسی گفتگو ہی کرنی ہے تو ہم یہ شوخی برداشت نہیں کریں. استاد جی پلیز ادھر آئیں نا. یہ بہت ہو چکی, اب نہیں. بہت ہو چکی. بالکل نہیں, آپ تشریف رکھیں پلیز. آپ یقین مانیے ہمارے دادا جی ہمارے انہیں بتائیں, مجھے کیوں بتائیں. بگی میں نواب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جاتے تھے. بگی میں بگی چلاتے تھے. چلاتے نواب صاحب تھے. اچھا زبردست, یہ عزت تھی ان کی. ہمارے دادا ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. اور دادا ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ بگی کا گھوڑا بدک گیا. اچھا, جب گھوڑا بدک گیا تو دادا جی اکیلے اوپر رہ گئے, نواب صاحب تو چھلانگ لگا کے نیچے اتر گئے. واہ. تو دادا جی اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو گھوڑا بدک گیا اور دادا جی اوپر اکیلے بیٹھے ہوئے اور گھوڑے دوڑ پڑے. ایک گھوڑا جب بدک گیا تو ساروں نے دوڑ لگا دی اور ایک گھاٹی پہ جا کے تو وہ گھوڑا گاڑی الٹ گئی. دادا جی نیچے اور اوپر گھوڑا گاڑی پڑی ہوئی تھی. ہاں, اب دادا جی اسی گھاٹی پہ دفن ہے. گھاٹی پہ؟ ہاں. تو دادا جی تو ایسے ہو گئے, سیدھے تو ہو نہیں سکتے, گھاٹی تو ایسی ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ دادا جی کی کتنی عزت تھی کہ نوابوں نے قبر بھی خود بنوائی. خود بنوائی, خود نوابوں نے خود ان کی قبر بنوائی. اب آپ نے ان کی قبر بنوانی ہے. دیکھیں یہ آپ شوخی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ شوخی ہے. نہیں, وہ 50,000 روپے دے کے سمجھ رہے ہیں آپ کو خرید لیے. نہیں, ہمیں کون خرید سکتا ہے. فن بھی کوئی ہمیں کون خرید سکتا ہے. ہم کوئی فن بیچتے نہیں ہیں. یہ بات ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا. آپ 50,000 واپس کریں. کیوں, وہ تو انہوں نے دے دیا ہمیں. لیکن استاد جی اگر آپ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کی ایڈوانس 50,000 کی رقم تو واپس کرنا پڑے گی. تو کر دیں گے. اس طرح اگر یہ شوخی کریں گے تو ہم تھوکتے ہیں 50,000 میں. یہ بات ہم ان کے منہ پہ ماریں گے 50,000. 50,000 کیا ہوتا ہے؟ زبردست. ہم 500 کر کے ہر سال ان کے منہ پہ مار دیں گے. سال دا 500 جنی تڑی عمر ہے تو اس نے 1,000-1,500 ہلا سکو گے بس. آپ استاد جی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ایک بیٹے کیلگری کینیڈا میں اچھا خاصا بزنس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی وہاں کینیڈا کیلگری میں؟ وہاں پہ وہ بیمار رہتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ وہاں پہ 4-5 سال سے بیمار ہیں. اور مجھے بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ بھی ادھر آ کے بیمار ہو جائیے. وہاں پہ بیمار کو پیسے دیتے ہیں. ہاں, وہاں پہ سردی بہت ہے. ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ کہیں ہم سچ مچ والے بیمار نہ ہو جائیں. کی ٹھنڈ دا پروسا یار, ٹھنڈ آوے ناوے. کہ چنڈ دا بھروسہ یار, چنڈ آوے نہ آوے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ جس طرح خوراک کو پورا کرنے کے لیے گورے نے یہ برائلر مرغ نکال لیا ہے, اور ڈاکٹر جو ہیں وہ آج کل یہ آدھا کہتے ہیں جی وائٹ میٹ استعمال کریں, یعنی مچھلی اور مرغا استعمال کریں. مرغے میں تو پھر کہتے ہیں جی کہ جو آدھا پچھلا مرغا ہے وہ وائٹ میٹ میں نہیں آتا, اگلا جو ہے نا جو بریسٹ کے پیس ہے وہ صرف آتے ہیں وائٹ میٹ میں. تو مچھلی تو ویسے بھی ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے, بیسٹ میٹ. تو یہاں پہ مچھلی کے گوشت کو کیوں نہیں زیادہ پالا جاتا اور بیچا جاتا؟ یار مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ مچھلی کے استعمال کے حوالے سے تو ہماری مت ماری گئی ہے. ورنہ تم دیکھو کہ پوری دنیا میں اوسطاً ایک شخص 20 کلو سالانہ مچھلی کھاتا ہے, اور ایک پاکستانی کتنی کھاتا ہے؟ 2 کلو. ہاں, بڑے افسوس کی بات ہے نا. اور پاکستان جو ہے وہ مطلب مچھلی کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ان آئیڈیل 3 ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ بآسانی مچھلی پیدا کی جا سکتی ہے. نہیں, پھر ایک دفعہ بتاؤ 20 کلو کتنی؟ اوسطاً سالانہ ایک شخص دنیا میں مچھلی کھاتا ہے, پاکستان میں 2 کلو. اتنا فرق ہے. ہاں,
18 किलो मंगा के मेरा तो बैलेंस करो। तुम्हारी मेहरबानी है यार, ये तो बहुत बुरी बात है। 2 किलो सिर्फ यार। अरे ये जो मैं मिथ्स कह रहा हूँ ना, ये भी एक अजीबोगरीब बनी हुई है ना कि जनाब सिर्फ दिसंबर जनवरी फरवरी में मछली खानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। हर रोज खा लेनी चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। मगर यार सियाने कहते थे कि मच्छी गन्ना ते दुआना, अस्सू पक्के कत्ते खाना। और यार वो ठीक है सियानों की बात, लेकिन सियानों ने तो कई कुछ कहा हुआ है। सियानों ने तो ये भी कहा हुआ है कि कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो भागने की बजाय बैठ जाना चाहिए। एक बंदा बैठ गया था, कान ले गया था। बिल्कुल नहीं सियानों ने कहा हुआ। तो मैं किसी बेवकूफ ने ये कहा है। यही कहते थे। तो कुत्ता भौंक रहा हो, उसके सामने बैठ जाएंगे तो आप तो कुत्ते के मुंह थ्रू। पर यार सियानों का कहना अपनी जगह। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इतदाल में रह के मछली आप पूरा साल खा सकते हैं, लेकिन इतदाल में रह के। लो जी जून जुलाई च खानी जी गौरी साहब। लेकिन हमारा जो मछली खाने का अंदाज है ना, दोस्तों की महफिल लग गई और उसके बाद तली हुई मछली खानी शुरू कर दी, 4-4, 3-3, 5-5 किलो, वो गलत है। मछली इतदाल में रह के खानी चाहिए। पूरी दुनिया में इसी तरह मछली को डेलिकेसी के तौर पे खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ है ही नहीं है। ये रटा डालना और साथ ही वो तली मछली बीच में से निकाल दी। नहीं वैसे मत नहीं मारेगी, मेरा ख्याल हमारा पानी मारा गया। पानी छोटा ही नहीं दिया। नहीं यार पानी भी है हमारे यहाँ, ये मतलब हम फार्मिंग की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। पाकिस्तान अपनी अगर 100 किलो मछली पैदा करता है, उसमें से 70 किलो एक्सपोर्ट कर देता है। अच्छा। हाँ, और पाकिस्तान ने मतलब 30 यानी 70 किलो एक्सपोर्ट करके मछली सालाना $30 करोड़ कमा रहा है। और कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, $1.5-2 अरब डॉलर तक हम मछली की एक्सपोर्ट को ले जा सकते हैं। मैं तुम्हें छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में एक मछली पैदा होती है जो दुनिया के सिर्फ चंद मुल्कों में पैदा होती है, बल्कि अगर मैं एग्जैक्टली कहूं तो 4 या 5 मुल्कों में पैदा होती है। वो है ब्राउन ट्राउट या ट्राउट, जिसको हम सिंपली कहते हैं। हम अभी अपनी जरूरत ही नहीं पूरी कर पा रहे। मतलब तुम देखो ना कि किसी बड़े बड़े स्टोर्स में तुम जाओ, तुम्हें वहां पे भी हफ्ते में 1 आध दिन के लिए ट्राउट नजर आएगी और उसका जो रेट होगा वो 1200 से लेकर 1500 रुपए किलो तक होगा। और हमारे शुमाली इलाकों में इस ब्राउन ट्राउट का इतना जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है कि हम मतलब जितनी मर्जी मछली पैदा करते जाएं, हम डिमांड नहीं मीट कर सकते जो वर्ल्ड मार्केट में इसकी मौजूद है। इस वक्त हमारे शुमाली इलाकों में इसकी पैदावार के फरोग के लिए कई दफा मंसूबे शुरू किए, लेकिन हार्डली वहां पे 60 फार्म मौजूद है। हालांकि जो सिर्फ अगर इसकी फार्मिंग पे तवज्जो दी जाए तो 10,000 फार्म वहां पर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। अगर हम 10,000 फार्म भी बना लेना, फिर भी इतनी वर्ल्ड मार्केट मौजूद है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं तो क्यों नहीं बनाते, क्या वजह? नीयत हर मामले। मैं तुम्हें छोटा सा एक मिसाल दे। नीयत किसकी? हमारे हुक्मरानों की। और क्या यार, हुक्मरानों ने आगे मछलियां पालनी। यार हर बात तुम कहते तो हुक्मरान नहीं, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज होती है ना। मैं तुम्हें एक मोटी बात बताता हूं। तो तुम्हारी तुम हुक्मरानों को उलामा दे दो। किसको? मच्छी पालनी है, जाके उधर पाले लोग। हाँ, तो क्या नवाज शरीफ आके मच्छी को सर सर लून लगाए? हाँ मैं बताता हूँ, नवाज शरीफ और वहां पे परवेज खटक साहब और शहबाज शरीफ और इन सारों को क्या करना चाहिए। हमें ये जो ट्राउट मछली है, ये किसने तोहफा दी थी? हमारे यहाँ नहीं होती थी ये मछली। अच्छा। ये हमें अंग्रेज ने तोहफा दिया था। ये कश्मीर के महाराजा ने कोई तोहफा दिया था किसी बरतानवी रॉयल फैमिली के मेंबर को। उसने बदले में थोड़े से ट्राउट के अंडे हमें भिजवाए थे, जिससे ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये गिलगित में, कश्मीर में, सवात में जो आज तक चल रहा है। लेकिन हमने उसको बढ़ाने पे कोई तवज्जो नहीं दी। तवज्जो इस बात पे देने की जरूरत है कि हम उसका जो लार्वा और अंडे हैं वो महफूज करें। जो गैर कानूनी शिकार है इन इलाकों में, उसको खत्म करें। करंट छोड़ के दरिया में सारी मछलियां मार दी जाती हैं और फिर पकड़ी जाती हैं। इससे ज्यादा दरिंदगी का मुजाहरा धमाका करके दरिया में फिर मछलियां पकड़ी जाती हैं। मछलियों के साथ अंडे, बच्चे, लार्वे सब मर जाते हैं। ये जुल्म होता है। तो ये जो धमाका है ये परवेज खटक करते हैं। अब बात ये है कि अगर वर्ल्ड मार्केट मौजूद है तो फिर वो जो तुम कहते हो कि हुक्मरान क्या करें, हुक्मरान वो करें जो एक अफ्रीका में, एक बिल्कुल अफ्रीका के जनूब में एक 20 लाख की आबादी वाला मुल्क है, बिल्कुल टटीरी जितना मुल्क है, और उसका नाम है लेसोथो। अच्छा। लेसोथो लैंड लॉक मुल्क है। वहां पे चंद साल पहले हुक्मरानों ने यह देखा कि ना वर्ल्ड मार्केट जो है ट्राउट बड़ी जबरदस्त है और हम पैदा कर सकते हैं। उन्होंने ट्राउट पैदा करनी शुरू की। आज वो 5 से 6 करोड़ डॉलर सिर्फ ब्राउन ट्राउट से कमा रहे हैं। कहां पे? लेसोथो में। इतना सा शहर है, इतना लेसोथो कस्टर्ड में डालते हैं भाई। खुशबू पैदा करने के लिए तुमने लेसोथो मुल्क बना दिया।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वतन अजीज के मौजूदा सियासी हालात को दानाई और हिकमत की ऐनक से देखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब साहब, आपकी मेहरबानी जनाब। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये दानाई और हिकमत की ऐनक से तो मैं बिल्कुल अभी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ, मगर ये सीनियर के साथ अगर आप तरीन भी लगा लेते तो मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब था। नहीं ज्यादा, क्योंकि सीनियर तरीन मैं ही हूँ, जहांगीर तरीन ने बाद में अपने साथ तरीन लगाए। बिला शुबा जो साहब आप सीनियर तरीन लीडर्स में से एक हैं। अगर सिर्फ यही कह दियो कि सीनियर तरीन है, सीनियर तरीन लीडरों में से एक, क्या मतलब? अल्लाह के फजल से मेरे मुझसे सीनियर अब कोई सियासतदान नहीं है। अच्छा हाँ, गुजरातों निकली है नहर दे कोल एक बोर्ड लगा है, वो मेरे तो सीनियर है। वो चूंकि मेरी याद है कि जब मैं छोटा था उस वक्त भी वो एडा ही सीनियर से। चौधरी साहब मैं बताता हूँ, एक मिनट है, आपकी तो बात नहीं। एक मिनट मुद्दा खलो जा, मैं भी दसन नहीं आया, मैं को कटिंग कराने नहीं आया। खलो जा एक मिनट। तो जुनैद साहब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ना, ये सियासत की बनी हुई, ये चूं चूं का मरबा बन गई हुई है। एक बात मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि ये जो पनामा केस भी चल रहा है और ये एहतसाब की बात भी हो रही है, ये जो मुस्लिम लीग की एक्सटेंशन है ना, ये जिन्होंने नाम रख लिया है नून लीग, ये कभी भी काबू नहीं आ सकते, ये बड़े तेज लोग हैं। जब तक तमाम मुस्लिम लीगें इकट्ठी नहीं होंगी इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपोजिशन में सारी मुस्लिम लीगें इकट्ठी हों और खुद ही इकट्ठी हो जाएं, इन्होंने किसी के कहने पे नहीं इकट्ठे होना, उस तरह खुद ही इकट्ठी हो जाएं। जिस तरह सर्दियां च बंदे तो रजाई डेग पवे तो बंदा आप ही नहीं इकट्ठा हो जाता, उस तरह ये सारी खुद ही इकट्ठी हो जाए तो फिर इनका एहतसाब हो सकता है। अच्छा। और ये मुस्लिम लीगों के अलावा ये जो पार्टी है इसको भी खुल के क्लियर बात करनी चाहिए। ये 4 बयान उनके खिलाफ दे देते हैं और फिर एक बयान उनके हक में दे देते हैं। इनकी हिकमत अमली जो है वो भी वाज़ेह होनी चाहिए। ये उस तरह का काम कर रहे हैं जिस तरह एक बंदे ने तीसरी शादी कर ली ना जी, तो उसकी बीवी ने कहा कि आपने मुझे शादी से पहले बताया नहीं था कि आपकी पहले भी 2 बीवी हैं। तो वो कहने लगा कि बताया तो था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मलका और शहजादी की तरह रखूंगा। तो वो मलका और शहजादी मेरिया पहलियां 2 बीवियां का नाम ते वो बीवी ओदी ते कोल फ्राई पान पे असी उन्हें चुक के ओदे सिर च मारिया। यही कीता जी, मैं भी तुहानू कहा सी मैं तुहाडे नाल बादशाह वाला सलूक करांगी, साडा नौकर है ओनू बादशाह बादशाह कहंदे ने, रोज मेरे को फेंटी खांदे। तो ये वाज़े पॉलिसी होनी चाहिए, वो पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग की हो या किसी की भी हो, तो इन सब को काफली के बैनर तले जमा हो जाना चाहिए। बल्कि मैं तो तहरीक इंसाफ वालों को भी मशवरा दूंगा कि ये अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग ते अलफ रख ले, तरीके इंसाफ भी चलता रहेगा। बल्कि पीपल्स पार्टी भी अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग पीपी रख ले। ये सब अपोजिशन वाले एक बैनर तले जमा हो जाए, चलो बैनर बड़ा बनवा लांगे, कोई ऐसी गल नहीं। चौधरी साहब का कहने का मकसद ये ओए एक मिनट खलो जा पुत्र, मैं भी समझाने मैं को फारसी च गल करने। चौधरी साहब ये ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਟਰੀ सूफी है? हाँ जी सैकटरी है मेरा, और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ कच्छू को मैंने टोपी पाई। चौधरी साहब मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਣਾ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫਲੀ ਚ, ਕਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫਲੀ ਹੈ। कुड़ी दूसरे काफ से है, काफ है आपकी। ਸਾਡੀ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੀ ਕਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਅੰਗਰੀ ਚੱਲਦੀ। जुनैद साहब मुझे चौधरी साहब के मुतालिक ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि रेस्क्यू 1122 इन्होंने बनाई है। इसका मतलब है आपको चौधरी साहब के बारे में सारा कुछ ही पता है ना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वही बनाई है। चंगा तुसी नून लीग के खिलाफ हो।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ 1122 ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ बनाई, अल्लाह के फजल से हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई। चौधरी साहब के दौरे हुकूमत में 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी थी। 40,000 किलोमीटर, हाँ जी, यानी इथों लैके अमरीका तक और यार मुख्तलिफ सड़कें बनी थी। हैड तो कॉलन पावल वाला रखे, गल तो जीले मिस्त्री वाली की थी। ओ भाई मुख्तलिफ सड़कें बनाई थी, गांव गांव सड़क बचाई है हमने। और चौधरी साहब के दौर में रिकॉर्ड तादाद में हॉस्पिटल्स बने, फिर उन हॉस्पिटल्स में मुफ्त दवाइयां दी, फिर रिकॉर्ड तादाद में स्कूल बने, उन स्कूलों में मुफ्त किताबें दी, फीस माफ कर दी, फीस की किताबें मुफ्त बांटी है। अल्लाह के फजल से जितना काम हमने किया है वो किसी ने भी नहीं किया। माशाल्लाह तुसी बड़ा याद रखे है। तुसी आया करो ना कभी घर रोटी शोटी खाने। नहीं जैसा जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। नहीं करते ना जुनैद साहब, सच्ची बात भी नहीं करते। इकतदार बंदे को चला जाए तो सारे इंजन होस जाते हैं, जिवें विआह ते छोटे फुੱਫੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई तू फुੱਫੜ छोटा है तो बोटी भी छोटी ले। एक ही गल है कि छोटा फुੱਫੜ ਵੱਡੀ ਬੋਟੀ, ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ, छोटा फुੱਫੜ ਵੱਡੀ ਬੋਟੀ, ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ। क्या बात ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਡਾ छोटा नहीं नहीं छोटा फुੱਫੜ ਵੱਡੀ ਬੋਟੀ, ਵੱਡਾ छोटा फुੱਫੜ फुੱफड़ छोटी। क्या कह रहे हैं जैसा क्या हो गया? एक सीनियर सियासतदान कह सकते। छोटा फुੱਫੜ ਵੱਡੀ ਬੋਟੀ, ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ, छोटा फुੱਫੜ बड़ा फुੱफड़ छोटी बोटी, छोटा फुੱफड़ छोटा फुੱफड़ ही और बड़ी बोटी। अरे फुੱਫੜ छोटा रखोगे तो फिर बोटी ਵੱਡੀ पानी पाएगी। सर मैं जब फुੱਫੜ ਵੱਡਾ होवे तो फिर बोटी छोटी चाहिए। चलिए ठीक है। अच्छा साहब ये फरमाए मुल्की सियासत में आप क्या देख रहे हैं? सियासत च भी ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ। छोटा फुੱफੜ ਵੱਡੀ ਬੋਟੀ, ਵੱਡਾ फुੱफੜ छोटी बोटी। सही कह रहा हूँ मैं, जो इस काबिल ही नहीं है उनको बड़े बड़े ओहदों पे बिठाया हुआ है, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो बेचारे छोटियां छोटियां बोटियां पे बैठे हैं। बोटियां? और मेरा मतलब है कुर्सियां पे बैठे हैं। असल में चौधरी साहब यार समझाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, सर जी सूफी बड़ा पुराना मेरा सैकटरी है ते जरा थोड़ा जिहा फिर बोलना चाहता है। तेन मैं आखिया भी थी कि प्रोग्राम मुकेगा तो जिन्ना मर्जी बोल ले। तो बात ये है जुनैद साहब के काम जितना हमने किया है वो लोग याद नहीं रखते, वरना अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तारीख में जितना काम हमने किया है ना, वो मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं किया। जैसे कायदे आज़म ने तो किया होगा। कायदे-आज़म साहब ने किया है, या फिर मेरा ख्याल है अयूब खान ने किया है, या फिर भुट्टो ने किया है, या ज़ियाउल हक ने। सूफी है तो काफी सारे निकल आए ने। तू कहता है सिर्फ तुसी कीता है। सूफी भी गलत गल्लां करी जाता। ऐसे मियां मिले ना, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, बद तहजीबियों में चूंकि शादियों का मौसम अपने अरूज पे है, तो शादियों से मुताल्लिक एक बद तहजीबी है जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस बनती है कि शादी की तकरीब में जब हम सब कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि गाड़ियों की पार्किंग किस तरह होगी, कहां पे होगी, और वो दीगर लोगों के लिए प्रॉब्लम का बायस तो नहीं बनेगा। और वहां पे घंटों के लिए ट्रैफिक हम रोक देते। हाँ जी, और अक्सर जो हमारे शादी हाल हैं उन्होंने भी पार्किंग वाली सहूलत को इतनी कंफर्टेबल नहीं बनाई। सही। ये वाकई हुकूमत को लाजमो मलजूम करार दे देना चाहिए शादी हालों के लिए कि पार्किंग जरूर रखें। और जो शादी की मैदानों वगैरह में होती है, सड़कों वगैरह पे तंबू शंबू लगा के, उन लोगों को भी रास्ते का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरे जो मेहमान आते हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि वो किसी जगह पे जब गाड़ी पार्क करते हैं तो उनके जहन में बात मौजूद रहनी चाहिए कि किसी ऐसी जगह पे तो नहीं गाड़ी पार्क कर दी जो बाकियों का रास्ता रोक रही है, थोड़ा सा दूर पार्क कर लें, थोड़ा सा मतलब तकलीफ जहमत फरमा लें कि पैदल भी चल लें 4 कदम। हाँ जी, हाँ जी, जाहिर है उससे फिर आप जैसे अमीर लोगों की बिरयानी बढ़ जाती है। मस्कीन बेचारा आप गड्डी लांदा फिरदा, इहो जे बंदे ड्राइवर ने कहते इधर उतारो फटाफट अंदर।
आप गाड़ी में रहना, ड्राइवर को कहते हैं आप गाड़ी में रहना। तुम गाड़ी में ड्राइवर में जहाँ पे जगह मिलती है लगा के आओ। वो बेचारा जो आते अगो वापस आउंडा तुम्हारा बस चले ना तो तुम ये भी कह दो कि हिरोशिमा पे एटम बम मैंने फेंका था। यार मैं पागल हूँ, तुम पे इल्जाम लगा दूं बम तुमने फेंका। हाँ, पिन तुम जैसे किसी ने खींची होगी। जितना काम हो इल्जाम उतना ही लगाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाकई ये बहुत बुरी बात है, वो शादी में हो या किसी फंक्शन में हो या वैसे घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनके मुतल्लिक भी कहूँगा। अच्छा, एक और बात है जीबी कि ये जो नई कॉलोनीज खास तौर पे बन रही हैं, इसमें जब एक जैसे घर होते हैं, एक ही वक्त में तामीर हुए होते हैं, देखने में अच्छे लग रहे होते हैं बिल्कुल, लेकिन कोई एक बंदा अपने घर का जो आउटर व्यू है, जो उसके एलिवेशन है, उसका ख्याल नहीं करता। गंदे कपड़े टांगे होते हैं, गंदी चीजें बालकनी में रखी होती हैं, बिल्कुल वो पूरी कॉलोनी की खूबसूरती को बर्बाद कर रहा होता है एक शख्स, और उसमें पैसों का या माली हैसियत का कोई अमल दखल नहीं होता, सिर्फ उसकी सुस्ती माने आती है। तवज्जो नहीं बस सिर्फ होती। मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि हमने अपने घर जो है ना वो चार दीवारी के अंदर वाली जगह को ही समझा हुआ है। अगर हम सारे मुल्क को अपना घर समझ ले तो ये बड़ा प्यारा अल्लाह के फजल से मुल्क है, खूबसूरत नजर आना शुरू। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैद अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं जिनको अगर कहा जाए ना कि यार थोड़ी बहुत सैर सूर जरूर किया करो तुम्हारी सेहत बेहतर रहेगी, तो वो आगे से फट कह देता है जी सैर कितने करिए जनाब, हमारे पास तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। लाहौर में तो फिर भी चलो 4-5 ऐसे बड़े पार्क हैं जहां पे लोग जाके तो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। हाँ जी। ये जो दूसरे शहर हैं छोटे या बड़े, बहुत कम लोगों को वॉकिंग ट्रैक मैसर है या कोई ग्राउंड मैसर है जहां पे कोई सैर सूर कर ले। तो क्यों नहीं हुकूमत इस तरह का कोई ऐलान करती, हर एमएनए या हर एमपीए जो है वो अपने अपने इलाके में कोई इस तरह की जगह जो है वो बनाए या ढूंढे या उसको तैयार करे या गवर्नमेंट को बताए, डीसीओ साहबान के साथ मिलके वहां कोई पार्क वगैरह ऐसा बनाया जाए जो लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए मुयस्सर हो सके। यार मैंने एमपी अपने लिए जगह ढूंढे हैं, आवाम के लिए जगह ढूंढे। यार आवाम के लिए ढूंढ लेना तो उसी में आके वो भी सैर कर ले, उनको को कंडे लगे होते हैं। नहीं, जिस जगह पे उन्होंने कब्जे करने होते हैं वो ढूंढते हैं सबसे पहले, नाज़िया ज़मीन है। यार इस तरह ना करो, कुछ थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करो। आई एम वेरी टेंस। बेशुमार ऐसे लोग हैं बेचारे जो बताते हैं कि भाई जी सवेरे अगर बाहर निकल ही आए सैर सूर करने के लिए, कोई गली मोहल्ले में ही या कोई सड़क के ऊपर ही, तो साथ साथ को जमादार झाड़ू फेर के तो सारी हमारी ऑक्सीजन के ऊपर कटा डाल देता है। मेरा मतलब है कोई इंसानों के लिए कोई तो ऐसा सोचना चाहिए ना कि थोड़ी बहुत सेहत को ठीक हो। जरूरी है कि अस्पतालों को ही बेहतर बना के या उनके लिए ही कलप कुलप के तो लोगों को अस्पताल तक ही पहुंचाया जाए। पहले ही क्यों नहीं हम सेहत का ख्याल रखने की कोशिश करते। कोई जल्दी वॉक के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। थैले का देखे क्या हाल हो गया। यार थैले को वॉक के लिए कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं, थैले को तो कोई भी पकड़ के ऐसे ऐसे करता रहे तो इसकी वॉक होती जाएगी। ये थैला है, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। बहुत जरूरी है मॉर्निंग वॉक के लिए या अपना वैसे वॉक शॉक करने के लिए शाम के वक्त दोपहर के वक्त जगह हर मोहल्ले में हर इलाके में जरूर होनी चाहिए। इसकी तरफ ईमान से बड़ा सीरियसली हुकूमत को देखना चाहिए। बहुत काम खराब होता जा रहा है। अगर कोई किसी मोहल्ले में किसी इलाके में कोई मैदान या जगह है भी तो उसकी इतनी बुरी हालत है कि इंसान तो उधर है ही नहीं, कुत्ते ही नंगी पैरी फेर रहे होते हैं। और कुत्तों ने गुच्ची के शूज पहन के फिरना है यार। यार गुच्ची के ना हो, चलो को पावे हवाई चप्पल ही पहनी हो, जितनी बुरी वो जमीनें होती हैं और मैदान होते हैं वहां पे महसूस होता है कि यार कुत्ता बेचारा नंगी। कुत्ता हवाई चप्पल पहन ही नहीं सकता, उसके पाँव का अंगूठा ही नहीं होता। यार तुम शो करते हो या कुत्ते की उंगलियां गिनते रहते? अब भाई जी होता है कुत्ते का अंगूठा। मैंने एक दफा एक कुत्ते को रोड़ा नहीं था मारा तो उसने मुझे पीछे से ऐसे किया था। वो यार नहीं होता होगा, अगर कुत्ते का अंगूठा होता तो वो कुत्ते की संगी पे ना रखता। बात तुम्हारी 16 ने ठीक है मगर मैंने देखा हुआ है। अच्छा जी खबर सुने,
خلا سے کچرا ہٹانے کے لیے جاپان کا خلائی مشن روانہ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاپان نے ایک کارگو خلائی جہاز کچرا اٹھانے کے لیے خلا میں بھیجا ہے. کیا جی ہمارے بیت الخلا نہیں صاف ہو رہے, وہ خلا صاف کرنے چل پڑے. حد ہو گئی ہے ویسے یار, ہم ان کی اتنی گاڑیاں خریدتے ہیں جاپان والوں کی, تمہارے پاس ان کا فون نمبر نہیں ہے؟ ان کو فون کر کے کہو کہ یار خلا میں کون سا آپ نے ادھر جا کے تو مارننگ واک کرنی ہوتی ہے, آپ کے پاس اتنی کچرا اٹھانے والی اگر فالتو گاڑیاں ہیں تو پلیز ہمیں دے دیں, ہم کراچی والوں کو دیں. خلا میں سب سے زیادہ گند امریکیوں نے ڈالا نا, ناسا والوں نے. بندہ انہوں نے ناسا تے 2 لاوے گند یہ ڈال کے آئے ہوئے ہیں, اب وہ جاپانی اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں. جنہوں نے ناسا ہی نہیں نے. امریکیوں کا گند ہمیشہ دوسری قومیں سمیٹتی ہیں. ہائے ہائے ہائے, تو پھر کراچی کا کیا کرنا ہے؟ اور 5 سال بعد اس کی طرف ہم نے اگر دھیان نہ دیا تو کراچی کو پھر ہم کچراچی کہنا شروع کر دیں, جتنا ادھر کچرا ہے. یہ جاپانی خلا چ ٹرک کچرے دا بھر کے لے جان گے کتے تھلے لے گے؟ نہیں, میرا خیال ہے نیچے تو نہیں لے کے آئیں گے, تو بدتمیزی ہوے گی. تو کتے سٹن گے؟ میرا خیال ہے چند تے سٹن گے. میں کی بگاڑیا انہوں دا, چند تے سٹن گے, تھلے تو سٹن. میرے تو کیوں سٹن؟ میرے تو سٹن. اور بھائی وہ جو اوپر والا چند ہے اس پہ کہہ رہا ہوں سٹیں گے. نہیں ویسے اگر چند پہ بھی پھینکیں گے تو ادھر بڑی لڑائی شروع ہو جانی ہے. وہ مائی چرخی والی نے اٹھ کے گالیاں نکالنی شروع کر دینی ہے. اترے تو شرم نہیں ہوتی ہے, سارا کچرا کٹھا کر کے میرے چند تے سٹ گئے ہو. شرم جا نہیں تو انو ایدھے تو ان کچرا سڑتا ہے تے چمکے گا کبھیں. تو انہیں سارے شاعران دے شیر جایا ہو جانے نے. کل 14ویں کی رات تھی, شبر رہا کچرا تیرا. ہے کو گل کرنا لیے 14ویں دا چاند نہ چمکیا جدن پھر تھلے بہ کے ڈر دے رہنا. ہایا 14ویں دا چاند نہیں چمکن دیا, قیامت نہیں نیڑے آن والی. عید دے چند پھر رکا ہی نظر نہیں آن گے. اور میں کنی کو ٹاکی مارا چاند تے کلی عورت. اچھا جی, خبر سنیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہر مسئلے پر عمران خان کا موقف تھرمامیٹر کے پارے کی طرح بدلتا رہتا ہے. پارا پارا کر گئی مجھ کو خواجے کی یہ بات. وارے واہ, خواجہ صاحب کو بندہ پوچھے آپ جس طرح کی بیانات اور زبان بازی کرتے ہیں اس سے تو چنگا پڑا ہے کہ نارمل بیچارہ مسکین آدمی جو ہے اس کا بھی لائمن پارا ہوتے تھلے ہو جاتا ہے. تو عمران خان تو پھر ایک لیڈر ہے جماعت کا, بلکہ مسکین بندہ بھی چھڑو جی. سچی مچی کا تھرمامیٹر سامنے رکھ کے اگر خواجہ صاحب کہے نا, کوئی گریس ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, پارے کا پارا چڑھ جائے. تھرمامیٹر بلکہ کہہ کہ جان دیو خواجہ صاحب تاڑی خیر یہ کر دے. بلکہ تھرمامیٹر ایسے بھی نہ کرے, وہ بیچارہ فٹاٹ کسی کی بغل میں گھس جائے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.